So viewers, it's a matter of great pleasure for all of us that 3 students out of 12 students of CHJV Public School Motihari have qualified for NEET 2020. It's no doubt a great achievement for the school and for the students and for the town also. With me here is the proud principal of CHJV Public School Motihari, Honorable Sri Pranav Kumar sir. Let's have a few discussions with Pranav sir. So first of all, how good this achievement is for the school? See, any achievement by the students of this school is always encouraging and a matter of pride for this school. The teachers, the principal and all the staff, they always feel happy when the child does good at any stage of life, and including the current NEET results. It is overwhelming. Out of the 12 biology students who appeared, 3 have qualified NEET, and it's really a matter of great pride for us. And these 3 students stayed here, they didn't go anywhere. It's a trend that normally the students leave their schooling after 10th, but they stayed here, did their 12th in the school and got all kinds of support from the principal and the school and the teachers. So is it something that the other students have to take into consideration before joining our school? Of course, I would like to make things clear. Like, people are in a state of dilemma, or I should say confusion, regarding coaching institutions and moving out to bigger cities and towns for better coaching opportunities. I do feel that NCERT textbooks are in themselves the greatest, what you call the most authentic pieces, and apart from that, if the child has confidence on himself or herself, the school level teachers are the best. This normally does not, the parents fail to understand this. They send their children to some other places. 50% of them do not adapt to the situations. They are a failure there itself. And out of the other things, if you try to analyze the success percentage as a ratio, out of the thousands and thousands of children, in fact millions of children moving to places like Kota, the success percentage is not even 1%. And here it is 25%. Of course. How challenging And it is? these children, as they have just now told me, these children have not taken any other aid from any coachings or tuitions apart from their school teachers. So that's praiseworthy. That suggests the future generations that they too can achieve all goals if they are steadfast, regular, with a fixed routine, and they have faith in their teachers. How challenging it is to convince the parents for the principal for their admission, because they feel that quality education is difficult here in a suburban area like Motihari. See, it's a very uphill task to convince parents, because parents and normal public moves with the sway of the world. They just get swayed away with the highlight that the coaching institutions and other institutions make. So much of media hype is there that school sometimes fails to convince the parents. But it is the parents who have to understand at the end that the school level teaching is the best for their children. If they concentrate on their studies in this school, if they try to solve their problems in this school, no additional help is required immediately. How challenging it is to provide that kind of atmosphere and environment for these students who really want to crack NIT and G. See, I don't talk about other schools, but as far as DAV institutions are concerned, their faculty is quite rich. Even to some extent, if I should say, they are getting handsome packages or salary, so the faculty is good enough. The school, it is somewhat up to the principal. If he tries, he can provide all possible material that can be there for the children. So with the help of teachers, the teachers to provide the right guidance, they can procure material, help the students, and ultimately the students will be victorious at any stage. Your message to the juniors who really want to crack NEET or the other NEET aspirants or even G aspirants? In fact, for all students, not only for NEET or JEE, but
for all other students who want to achieve any success in life, I would like to tell them that it is practice maketh a man perfect. Have faith in yourself, trust your teachers, and have a steadfast, good, disciplined life that will help you achieve all goals in your life. You need not to move around or wander anywhere in your life. How difficult has it been for you during the coronavirus lockdown to get a quality education to the students? Schooling, they're facilitating schooling from behind, from the school through virtual medium. Of course, this corona pandemic has taught a new way of life even to the school and the school teachers and the school staff, that we have in a way moved away from the traditional methods of teaching to the virtual methods. But all the way, I would like to tell that as far as the DAV institutions are concerned, our teachers have done this task, taken up this challenge in the normal course of schooling. There are many holidays, etc., and there are even the session starts a bit later. But right from the onset of the pandemic, that is, I remember from the 2nd of April, our school started the online classes. Our teachers first learned themselves how to use the virtual method, and now they have mastered this art also. They are doing justice to the student. They are providing all sorts of technical assistance. In fact, if I tell you, when the school runs, the children come to school, we are responsible, say, only for 5 to 6 hours or 4 to 5 hours. But during this pandemic, our teachers have been providing 24/7 assistance to the children, teaching through the virtual online medium, assignments, homeworks, and all other activities, scholastic as well as post-scholastic activities, through the online medium. So they are available on the WhatsApp, they are available on the telephones. Children can ask their queries anytime during the day. We have also taken a support app, the Snap Homework app, to support the children assessment, assignment, and all other activities. So our teachers are doing a very good job in this corona pandemic, and I hope the students will be benefited by their honest attempt. One final question, sir. The standard of teaching has really gone up, and the students must be feeling under a lot of stress and pressure, because the cutoff of every competition goes pretty high. If you look at the results, 2 students have got 72 out of 720 out of 720. Is it something that puts a lot of pressure on the students? Of course, seeing the current trends, like the children in need scoring 720 out of 720, that is 100%. Even the cutoff of DU, as we were discussing just a few hours back, is 100% in the humanities stream. So there is a cutthroat competition, no doubt. But at the same time, the resources that are available to the students are in a much easier and a greater way, that they can easily avail all resources that were previously not available to them. So the standard of teaching, the standard of education, the percentage of marks and everything has gone up. But in no way I should say it is difficult for them to achieve that, because they have, the only thing is the rightful guidance, the proper motivation. These two will help them achieve any success in life. Thank you very much, sir, for having a chat with us, and we were having the inspirational thought of Honorable Principal, sir. Anything would you like to say to the students who are sitting home? Just one word: have faith in yourself. The world is all yours. Thank you. So thank you, viewers, and now let me introduce you to the 3 aspirants and 3 students who really did a wonderful job and put up the top-notch performance by scoring great scores, and they are Meenakshi, Ayush, and Yashwant Dilkar. Namaste, we are here in the campus of CSDB Public School Motihari, and it's a great pleasure for all of us that 3 students of CSDB Public School Motihari have qualified for NEET 2020, and they are here in the campus after being successful. Let us have a few comments from, first of all, Ayush. He got 640 out of 720. Ayush, a few take of yours. It is a great pleasure for me to be a part of DAV, and I thank my DAV family, my teachers, my principal, and my friends also who supported. And principal,
for this achievement. And I must say, all the students who are part of DAV, they must have their faith, take their faith in their teachers, take support from them, and do well. This is your first attempt, and did you expect that in the very first attempt you are going to crack this? Yes, I was much confident about this, and I got this result. Thank you, Ayush. God bless you all. Thanks. And good wishes of all the teachers are there around you. Thank Thank you. you very much. Let me have the pleasure to invite Meenakshi Pandey to come up here. Meenakshi has been one of our promising students of CSW Public School Motihari. She too attempted this, and she has achieved 659 out of 720. It's of course a great achievement. Meenakshi, what do you want to say about that? So first of all, I'd like to thank our honorable principal sir, our teachers, and all the people who were associated with our school who helped us. Even our bus conductors, drivers, they were very friendly. Here in DAV, we have a very good environment for study, and plus teachers are very supporting. So I would request all of you to please pay attention, and if you have any doubt, ask your teachers. They will surely help you. Medical profession is something that everybody aspires to do. Yes. And a lot many students, whenever we go to the classrooms, we ask any student, what do you want to be? They said that either they have to become engineer or they have to become doctor. What is your message for your juniors, especially for those who want to be the doctors? Sir, those who want to be doctor, first of all, they need to build faith in themselves that they can do that. If they are not at all confident that the exam is very tough or the cutoff is very high, you need not to think about anything like that. First, you just think what to do, how to do. Exactly. What are the subjects, what the topics you have to cover and all that. That you need to think about, and not the cutoff and the score already. Because cutoff varies every time, every year. This year we have a massive cutoff, but yeah, if you pay attention to your topics, you surely crack it. How could the environment of CSW Public School help you to crack this? CSW Public School played a very massive role in our success because our teachers were very supportive. We have a good environment over here, and we have well-equipped libraries, and we have labs and everything which we require for our development. Thank you, Meenakshi. God bless you, and we all the teachers are with you, and God bless you. Our good wishes are around you. Thank you very much. We have another student. Yashwant Dilkar is another student of CSW Public School Motihari. He has been a very fantastic student, very disciplined, and this of course becomes a very matter of great pleasure for all of us that he cracked his NEET in the very first attempt, and he achieved 633 out of 720 marks. So let's have a discussion with the Yashwant. सबसे पहले तो अपने सारे टीचर्स को हम थैंक्स बोलना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसा पेपर होता है नीट जहाँ पे बस आपके मेंटल लेवल के नहीं, बट आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए, जो कि DAV से जो पूरा मिला। हर एक टीचर्स का पूरा सपोर्ट था। को करिकुलर एक्टिविटीज से भी आपके ब्रेन को एक्सपैंड किया जाता है। यहाँ पे DAV एक कंप्लीट स्फीयर है, मतलब टोटल डेवलपमेंट के लिए किसी भी चाइल्ड के लिए, क्योंकि आजकल का ऐसा कॉम्पिटिटिव हो गया है माहौल कि बस एकेडमिक्स में बेस्ट होके नहीं हो पाएगा। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आगे की तरफ, एज ए जूनियर से बोलना चाहेंगे तो अपना पढ़ाई कटअप बेस पर मत रखिए कि अगर कटअप नीचे आएगा तभी हम डॉक्टर बनेंगे, या फिर किसी साल पेपर आसान होगा उस साल डॉक्टर बनेंगे। अगर असलियत में कोई रीजन है डॉक्टर बनने का, तो चाहे कटअप हाई है चाहे लो, आप हाल में डॉक्टर बनिएगा। एक स्ट्रॉन्ग होप और डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क। फर्स्ट अटेम्प्ट में 633, तो आपने एक्सपेक्ट की कि इतना आ जाएगा, या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया या कम आया? कम आया सर, एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से लॉकडाउन मेरे लिए थोड़ा सा भारी पड़ा, हम मानते हैं, बट ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट था, इट्स ओके। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और एक अच्छा डॉक्टर बन के देश की सेवा करना है, और DAV को हमेशा याद रखना है। थैंक यू दिनकर, सभी टीचर्स आपके साथ हैं, और DAV हैज ऑलवेज बीन supporting to its students, and good wishes for the future. Thank you very much. So this was the interview session of the teacher between the students of our school who have really done a marvelous job. They have put up the top-notch performance in the NEET 2020, and this is not the end of CSW Public School Motihari. Whenever we talk about the quality, we always produce the. So we had a very nice interview with the students, the successful students of NEET 2020, and now let us have the discussion and a few chats with some of the faculties who really played a great job in the success of these three students. So first of all, SM Misra sir, who has been a very promising teacher of
बायोलॉजी इन CHB पब्लिक स्कूल मोतिहारी। SM मिश्रा सर, नीट के प्रिपरेशन के लिए बच्चों के लिए आपका क्या सलाह है? जब बच्चे क्लास 9th में आते हैं और सारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि 9th का जो सिलेबस है वो क्लास 11 से रिलेटेड है, तो जब आप क्लास 9th में आते हैं और अगर आपका डेडिकेशन होता है नीट की तरफ तो आप क्लास 9 से स्टार्टिंग कर लें, क्योंकि क्लास 9th में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर हैं वह क्लास 11 से रिलेटेड होते हैं। और जब आप क्लास 10th में आते हैं तो उसके सिलेबस 11th और 12th दोनों से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट 9th और 10th का अच्छा होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके क्लास 11th एंड 12th पर पड़ते हैं। और जब आप क्लास 11th में आते हैं और मोतिहारी जैसे एरिया में रहते हैं तो सबसे पहले आपकी फ्रेंडशिप आपकी अपनी बुक से होनी चाहिए। और बुक के मामले में सबसे पहले आप NCERT बुक का चॉइस करें, जो कि 2020 के नीट एग्जामिनेशन में यह देखा गया कि जो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से नीट में आते हैं उनमें से 88 क्वेश्चन NCERT की बुक से ही है। तो सबसे पहले आप NCERT बुक पर फोकस करें। साइड बुक आप तब पढ़ें जब NCERT बुक पर आपका कमांड हो जाए। बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगने लगता है? बायोलॉजी उनको इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? बायोलॉजी के केस में एक्चुअली होता क्या कि जैसे कुछ चैप्टर होते हैं डाइवर्सिटी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, या आप क्या कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से जो होते हैं, उसमें से जो कुछ टर्म होते हैं जो कि वो क्लास 9th और 10th में स्टडी नहीं करते हैं, और जब सडनली क्लास 11th में आते हैं तो उनको एक बर्डन लगने लगता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर जब बच्चे प्लांट किंगडम में आते हैं या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं तो उनके सामने में टर्म आ जाता है क्रायोसोफाइट्स, डिट्यूरोमाइसिट्स। आई थिंक जब फर्स्ट टाइम टीचर भी इसके बारे में स्टूडेंट लाइफ में पढ़े थे उस समय भी कंफ्यूजन होता था, और जब बच्चे इस चीज को देखते हैं तो वह हाईली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम बच्चे को उस टर्म को कैसे याद कराएं, उसके लिए कौन सा ट्रिक्स है। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे फंजाई पढ़ना है, और फंजाई के केस में 4 कंपोनेंट हैं, जैसे बेसिडियोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, डिट्यूरोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स। तो अब इस टर्म को बच्चे कैसे याद करें? तो जैसे होता है कि आप कुछ टर्म बना लीजिए हंसाने के केस का, जैसे बैड पापा जी आपको जब डांट दे तो वो बैड हो गए, तो बी से बना लीजिए बेसिडियोमाइसिट्स, ए से बना ले एस्कोमाइसिट्स, और डी से बना ले डिट्यूरोमाइसिट्स, अब ई से बना ले फेकोमाइसिट्स। अगर इस पैटर्न पे क्लास 11 के बच्चे को फोकस किया जाए तो स्पेशली वह प्लांट किंगडम से नहीं भागते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो स्टडी करना होता है अगर उसको बेसिक कंसेप्ट वे पर हम बच्चे को बताते हैं तो उनका कंसेप्ट अच्छा होता है। थैंक यू सर, बहुत शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अब मैं केदारनाथ मल्लिक सर को बुलाना चाहता हूँ, सामने आएंगे और वह भी कुछ वैल्यूबल टिप्स हम लोगों के बीच में रखेंगे। मल्लिक सर, एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बड़ी समस्या है कि उनका मैथ ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है, और जब मैथ कमजोर हो जाता है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कमजोर हो जाता है। तो आपका क्या टिप्स है ऐसे बच्चों के लिए? मेरा कहना है सर कि जब वो 9th में जाए बच्चे को इक्वली सारे सब्जेक्ट पे उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना बायोलॉजी पे। 9th 10th में जरूरी नहीं कि केवल हम बायोलॉजी पढ़ें और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को छोड़ दें, उनको वहां भी पूरा का पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक उनका मेंटल स्टेटस डेवलप नहीं करेगा सारे सब्जेक्ट के थ्रू तब तक वो नीट को क्रैक नहीं कर सकते। और जब वो 11th 12th में जाते हैं वहां जाके रटने पे ज्यादा जोर ना दें, समझने पे जोर दें, और समझने के लिए टर्म्स की एनालिसिस बहुत जरूरी है, जिसमें टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर उनको एनालाइज करके समझाएं, उनके ब्रेन में सेट करने का उपाय खोजें, और ये कह दें कि ये रट लो बेटा, तो ये मेरा समझ से ये अच्छी बात नहीं होगी बच्चों के लिए। वो थोड़ी देर के लिए वो वोलाटाइल होता है मेमोरी, आप सभी लोग जानते हैं, तो उस वोलाटाइलनेस को हटाने के लिए आपको अपने तरफ से न्यूमोनिक्स वगैरह का उपयोग कीजिए। आज के डेट में अच्छा है, एग्जाम्पल आप बेहतर से बेहतर देखिए, वो अच्छा है। NCERT पर पूरा का पूरा जोर दीजिए। अभी के एग्जाम में जो पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे होइएगा, मेरा कहना है कि बायोलॉजी NCERT सिलेबस है, पहले उसको पढ़ लीजिए, और उसके पढ़ने के बाद तब आप दूसरे बुक की तरफ जाइए। अगर 98 डायरेक्ट क्वेश्चन था तो कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन जो इसमें है बचा हुआ 90 में से 88 अगर इसमें था तो 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ वो भी इसी पर बेस्ड है। तो वो हम टीचर्स का जरूरत है कि हमारी लेवल कहाँ तक होती है, हम उनको क्या पढ़ाएं। एक बड़ी समस्या हो गई है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। आज आप देखेंगे कि रिजल्ट आया है और 720 में 720 2 बच्चों को आ गया है, और रेट ऑफ सिलेक्शन जो इतना हाई हो रहा है, तो क्या इससे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है बच्चों के बीच? कोई स्ट्रेस नहीं है,
केवल उनके मेंटल स्टेटस को सर आप बढ़ा के रखिए, बच्चे के स्टडी लेवल को आप बढ़ाइए, और तब देखिए कि उनका स्ट्रेस कहाँ है। अभी तो आप देख रहे होइएगा कि अपने तीनों बच्चे जो हमारे स्कूल के तीनों हुए 100%, ये खासकर मीनाक्षी और आयुष एक दिन भी स्कूल मिस नहीं किए हैं, और अगर अकेला बच्चा होता है तो पकड़ के अपने टीचर के साथ वो बैठते थे और समझते थे, और उनका इसी समय से हम लोग जान रहे थे कि आज इनका जो रिजल्ट है हम लोग वेट कर रहे थे जो आज के दिन आएगा, और आया है आज। थैंक यू सर, बधाई आपको भी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। स्कूल के बहुत विद्वान शिक्षक हैं रंजन कुमार मिश्रा जी, हम इनसे बात करेंगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो कॉमन है, बच्चों को इंजीनियरिंग करना हो या बच्चों को मेडिकल में जाना हो, फिजिक्स बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट भी है। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स क्यों डिफिकल्ट लगने लगता है, और ये बड़ा कारण है कि जो ऐसे प्रॉमिसिंग बच्चे हैं जो बायोलॉजी में संभवतः 360 में 360 ले आते हैं और फिजिक्स में पुअर परफॉर्म करते हैं और फिर वो सक्सीड नहीं करते। देखिए, फिजिक्स का जहां तक प्रश्न है तो मैं शुरू करता हूं कि फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स का एक लैंग्वेज है। यह मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कोरिलेशन होता है। तो कॉमनली बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं वे मैथ से थोड़े दूर रहते हैं, इसलिए उनको फिजिक्स टफ लगने लगता है। और मेरा जो मानना है, सिलेबस जो है 9th क्लास से एनसीईआरटी की शुरू न होकर के 8th क्लास से होती है। यदि 8th क्लास का फिजिक्स का सब जो सिलेबस है देखा जाए वह 8, 10 और 12 में सेम है, सेम तरीके से यह कैरी करता है। तो बच्चे को जो है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 8 से ही होना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक जो है बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे। और फिजिक्स जो है एक तरीके का स्पेशल साइंस है जिसमें बहुत कुछ चीज जो है इमेजिनेशन पर भी, इमेजिनेशन के साथ लैब और जो है लैब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और चूंकि यह मैथ्स बायोलॉजी वाले का थोड़ा सा वीक हो जाता है। ये स्कोरिंग पेपर है या लेस स्कोरिंग? फिजिक्स स्कोरिंग है या हाईली स्कोरिंग? हाईली स्कोरिंग, नो डाउट। इट इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बट यू हैव टू लर्न प्रॉपरली। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बात करके सर। प्रभात शक्ति सर हमारे साथ हैं, केमिस्ट्री के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है और हमारे विद्यालय के बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक हैं। सर बताएंगे कि थैंक यू सर, केमिस्ट्री का रोल बताएंगे आप, चाहे बच्चे को इंजीनियरिंग करना हो या मेडिकल करना हो, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, उसका रोल कितना है और किस तरह से पढ़ा जाए केमिस्ट्री? केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट का मेन पेपर हो जाता है और वहीं बायोलॉजी आपके मेडिकल के लिए आपका मेन पेपर हो जाता है। केमिस्ट्री दोनों के अंदर सेंट्रल रोल प्ले करता है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स अचीव करने के लिए बच्चे केमिस्ट्री पर फोकस करते हैं। और केमिस्ट्री इजी भी है, स्कोर करना आसान भी है। हम सोचते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो टफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, जैसे हम फिजिकल पार्ट को ले लेते हैं, अगर फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट को लेते हैं, क्योंकि 3 पार्ट है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो किसी भी कंपटीशन का ऑलमोस्ट 40% ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, रेस्ट जो बचे वो इनऑर्गेनिक और आपके फिजिकल से आते हैं। जैसे अब फिजिकल हो गया, तो फिजिकल जैसे हम अगर यूज करते हैं, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th का फर्स्ट चैप्टर है, और वही टॉपिक्स उसके 50% टॉपिक 9th में पढ़ना है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के नाम से। अगर वहां पर टीचर 9th में उस बच्चे को एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाते समय उसको मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज दे दे, तो उसका स्ट्रांग हो जाता है बेस। उस तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उसे डेवलप कर दे, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करे और एडिशनल पढ़ाए। मेडिकल एस्पिरेंट को डेडिकेटेड एफर्ट्स किस क्लास से करना शुरू कर देना चाहिए? 8 से 9 से 10 से कब से शुरू करना चाहिए? जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, मेडिकल एस्पिरेंट्स जो है बच्चे हैं, मेडिकल के जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि एम्स में उनका सिलेक्शन हो, तो उनको 8 से शुरू कर देना होगा। 8 में उनको मेटल्स जितने हैं, नॉन मेटल्स जितने हैं, एलिमेंट जितने हैं, उन सबका जानना होगा, उनकी वैलेंसी जानना, उनकी प्रॉपर्टी को जानना, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को जानना। अगर ये यहाँ 8 क्लास तक वो कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी रिएक्शंस को जान लेते हैं, तो इनके इजी होते चले जाते हैं। जो 9th में आने के बाद फिर वो 9th में थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो 11th के पार्ट को कवर कर लेते हैं। क्योंकि 10th में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सीमित है। जो 8 का कुछ पार्ट है उसी को अपडेट किया गया है, उससे ज्यादा नहीं है। दूसरा, ऑर्गेनिक जो स्टार्ट होता है वो 10th में स्टार्ट होता है। तो
बच्चे को अगर 8 क्लास में अगर हम बॉन्डिंग पढ़ा दें, ये सब चीज पढ़ा देते हैं, एटम के बारे में पढ़ाते हैं, तो उससे आसान होगा। एक बेनिफिट क्या है केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम उसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाते हैं और उसे अच्छा से ड्यूअल नेचर वगैरह पढ़ा देते हैं, तो वही टॉपिक फिजिक्स में पढ़ जाता है ड्यूअल नेचर के अंदर। कुछ हम सॉलिड स्टेट में जाकर सेमीकंडक्टर पढ़ा देते हैं तो फिजिक्स में उसको हेल्प कर देता है। सेम टॉपिक अगर हम बायोमोलिक्यूल्स अगर उसको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में, तो वही बायोमोलिक्यूल्स उसे बायोलॉजी में पढ़ना होता है। हम केमिस्ट्री में उसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं, वही चीज उसको फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। तो अगर देखा जाए इंटर रिलेशन करके, एक दूसरे से रिलेट करके देखा जाए, तो केमिस्ट्री के बहुत सारे जो पार्ट है जो फिजिक्स के पार्ट से रिलेट करते हैं, बायोलॉजी के पार्ट से रिलेट करते हैं। तो अगर केमिस्ट्री में बच्चा उस चीज को सोचकर दोनों तरफ से फोकस करे तो 100% सिलेक्शन होगा। अब आता है कि नीट वाले बच्चे के लिए, तो इसमें एनसीईआरटी, सभी टीचर ने हमारे कहा कि एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी है आपका। अब आता है क्योंकि वो फिजिकल के लिए आपका क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाकर तो देगा नहीं, तो उसके बेस होते हैं, उस बेस पर हमें सारा क्वेश्चन बनाना होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी हमें होगी। हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं करते तो किसी हाल में आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि टाइम भी कंज्यूम होता है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए टाइम के अनुसार। फिर हम उसी तरह हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। और एनसीईआरटी के जो मैं बता दूं, एकदम सिंपल से कुछ टॉपिक्स दे देते हैं। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं नेमी रिएक्शन में, जैसे एक विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, उसके लिए सिंपल टिप्स है कि RX रोना मत ईथर आने वाला है। RX अल्काइल हैलाइड हो गया, रोना मत मतलब सोडियम अल्कोक्साइड हो गया। अगर दोनों को मिलाते हैं तो हमारा रोना मत ईथर आने वाला है, तो ROR आ जाता है। तो ये सब छोटे छोटे कह रहे हैं कि न्यूमोनिक शॉर्टकट ट्रिक्स देना होगा करके आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, और वो नीट के लिए बिल्कुल अच्छा बताना होगा कि आपका बिल्कुल जो भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा उस बच्चे को ये पता नहीं चलेगा किस पार्ट से क्वेश्चन कहां से आ रहा है। मतलब बिल्कुल ईजी है। अगर हम प्रैक्टिस के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं तो 100% रिजल्ट होगा। ये मेरा थैंक यू सर, बहुत बढ़िया आपने। थैंक यू सर। हमारे साथ सत्यव्रत सर हैं, ये भी बायोलॉजी पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल में पिछले 7-8 वर्षों से बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों को। सर मुझे ये जानना है कि कम समय जब बच जाता है बच्चों के पास तो बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट उनका होने ही हुआ और सेकंड अटेम्प्ट उनके पास लगता है कि अब बहुत ज्यादा अटेम्प्ट वो लेना नहीं चाहते पेरेंटल प्रेशर से। ऐसे प्रेशर को बियर करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? उसने सबसे पहले तो जो टेंशन है दिमाग में उसको हटा लेना, साइकोलॉजिकली पहले फ्री होना, और फ्री होने के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस। जितना सेट आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप सक्सेस। क्या नीट में टाइम मैनेजमेंट जैसा कोई चीज है कि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हाँ, टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर नीट में रखें तो श्योरिटी होता है कि सक्सेस आप जरूर उसमें होंगे। इसका कारण क्या है कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे एक पोर्सन है जो काफी, जैसे जेनेटिक्स है मान लीजिए, तो आप उसमें काफी समय दे रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरा है वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन, जिसमें मन नहीं लगता है, तो उसको आप कम दे दिए। ऐसा नहीं, इक्वल दीजिए, उसको भी दीजिए और क्लासिफिकेशन को। बायोलॉजी के कुछ पोर्शन बहुत बोरिंग माने जाते हैं। यस, उन बोरिंग पोर्शन को कैसे बच्चे सीखें और याद करें? क्लासिफिकेशन, जैसे बोरिंग मानते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, टेक्सोनॉमी को बोला जाता है। तो उसके लिए क्या है कि टर्म्स यूज करें, सिंपल टर्म। जैसे टीचर पर सारा चीज निर्भर करता है कि वो निमक कुछ क्या करें, यूज करें कुछ टर्म सिंपल, जो उसको क्या करें कि जिंदगी भर याद कर सके, एकदम व्यवहारिक जिसको बोलते हैं कि उसको घर से रिलेटेड चीज उसको एग्जाम्पल दीजिए ना, तो फिर उसको क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, उससे बोरिंग कभी नहीं लगेगा। और मैं टेक्सोनॉमी में लेता हूँ, एनिमल किंगडम लेता हूँ, जो उसमें सब जो उसका पार्ट होता है, क्लासेस याद करने होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन उसको मैं सिंपल वे में बताता हूँ। वो कभी जिंदगी एक बार अगर पढ़ लिया तो वो फिर भूलेंगे नहीं। और हम लोग सबको जितने हैं टीचर बायोलॉजी के, सब हम लोग प्रयास करते हैं। और एक बात और, अगर मेडिकल निकालना है तो बायोलॉजी तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, और इसके अलावा आपका फिजिक्स पर भी पूरी तरह से पकड़, बायोलॉजी के जैसा फिजिक्स में भी पकड़ होना चाहिए। अगर फिजिक्स में पकड़ नहीं है तो उसके चलते उस लूज कर जाते हैं। तो आप फिजिक्स मजबूत कीजिए, बायोलॉजी एक जैसा, केमिस्ट्री एक जैसा, तीनों को एक जैसा देखिए। और एक बात मैं बता दूं कि आप जो मैथ्स 10 तक आपका पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए, तो वही आपको आगे जाकर के न्यूमेरिकल फिजिक्स जो फंसता है वो चीज आपका। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो अब तक बैठा हुआ है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उनका मैथ खराब हो जाता है, ऐसा यदि आप हैं तो आप सफल नहीं होंगे आज के डेट में। आपको मैथ और बायो
10th तक या 12th तक दोनों बराबर रखना पड़ेगा? दोनों बराबर रखना पड़ेगा, और खास करके 10th तक बायोलॉजी एक अलग हो जाता है। जैसे मैथ्स के बाद क्या हो जाता है, मैथ्स में जैसे आपको स्ट्रीम चेंज हो जाता है, छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 10th तक कम से कम पूरी तरह से पूरा मजबूत होना, उसमें अगर कमजोर आप रहेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अब कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे सक्सेस जो हुआ है यहाँ पर, जो बच्चा सक्सेस हुआ वो बिना कोचिंग का हुआ है, और मैं यहाँ ट्रेंड देखते जा रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे कोटा चले जा रहे हैं या दिल्ली चले जा रहे हैं। तो ये मेंटलिटी सबसे पहले आप चेंज करो कि प्लेस कोई मायने नहीं रखता। प्लेस मोतिहारी से हमारे बच्चे हैं, स्कूल के दम पर ये सक्सेसफुल किए, तो आप भी एडमिशन लीजिए और आप देखिए डीएवी में आप सक्सेस जरूर होंगे। प्लेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, मोतिहारी में भी अच्छे अच्छे टीचर हैं और आपको सक्सेस करा सकते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल ये तीनों बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अ चैट। So friends, we were having discussions with the teachers of CHV Public School Motihari. They were the teachers of 11th and 12th classes. They have been teaching physics, chemistry and biology, and it is because of their endeavors and their dedicated efforts, these three students have become extremely successful, and CHV Public School is having a lot of pride in having these teachers in our school. Thank you very much for watching us.